Hello and good evening to all to the umpteenth session of Masterclass Workshop, which is the 12th session today. And today we are going to have two talks. The first talk will be delivered by Mr. Rishabh Sharkar. He's working as the deputy manager at the ICICI Bank, and he's going to deliver a talk which is having a title A Leap to Overpass Hurdles of Career and Life. Mr. Sharkar, welcome to the session. The screen is yours. Thanks a lot. Thanks a lot, sir. So I have been introduced, so I won't waste time in that. Just get into the main thing as quickly as possible because we do all don't have enough time. So uh, I would just like to begin with like with my acquaintance. I want that all of you get acquainted to me, what I have done, what I have been doing till now. So that would help you in building the perceptions much more uh, vividly. Okay, so I have been schooled in from St. Thomas School, Ranchi itself, Ranchi, Jharkhand, and have completed my 12th from science background. And my journey begins from 2014. 2014, I since 2013 or mid 2012, I had been preparing for several engineering entrance examinations. Right. So when I appeared for the examination of JEE mains, by our time it had been JEE. Yeah. So I qualified the cutoff of general category, but a mishappening happened with me. The first mishappening of my life, of my career. Uh, I had some medical emergency due to which I could not join. I could not appear in the counseling process of JEE mains. So I had a talk with my parents, with people around me. My father left out the option to me that it's your call and you have to take a step. Either you wait for one more year, prepare hard, appear again, or you take your call. So I was a bit confused. I was uh, I was devastated. Like what to do? Sometimes in life you have such circumstances where you do not know, where you don't have enough experience to brace yourself that yes, my decision is right, or I'm doing the right thing, or I'm going on the right path, or I won't like head out to anywhere if I take the decision. So I had no idea. I was blank. I had to take a call. Time was passing. I took a call and I decided not to wait for any more year, and I got took admission in a very ground level private college in Ranchi itself. See, I won't. I must. As I have seen that my among my audience, all of most of you might be uh, 10th, 12th standard or ninth standard, who having boards ahead or is heading towards this particular phase of life. I'm not don't just quote me on this line that I'm not asking you to do what I have done. It had worked out for me, it might not work out for you guys. So I'm just sharing what I did. Take out the positive vibes from what I say and implement it in your module, not in my module. Fine. I took the call, I took admission. I had to face a lot of like bows, like swords pointed out at me. Like, what did you do? You wasted your reputation. Your degree would have no value. Nothing. I ignored. I completed my graduation, my BTech under mechanical engineering trade from that college itself. After that, I was placed. Before that thing, I didn't had really very bent towards like theoretical knowledge and bookish knowledge. I didn't had. I started a project of mine. If I don't know you guys know about that or not, there's a society called for Society of Automotive Engineers
SAE, which is conducting which conducts a graduation level competition for engineering graduates, technical graduates, no, undergraduates, not graduates, sorry, undergraduates. There they get give them the opportunity to prepare a formula-based vehicle to compete. So earlier it was in world level. Now SAE has conducted it in India level as well under the banner of Formula Student India. So I headed for that project. I was not successful. I was successful in delivering my thing. I was successful in building my vehicle, but I could not reach there where I wanted to due to some financial issues. I could not get raise funds due to the not so strong reputation of my college. Fine, hurdles came. I started taking my leap, as I have mentioned in my uh, topic. That a leap, what is that leap? That is not a single leap. The leap starts ever since you cross your 10th, 11th, ever since you have to take a call, ever since you are on that front where you have to take a call, where there is no one to brace you near, where there is no experience behind you to brace you up. You don't know what's right, what's wrong. So the leap starts from there. It's up to you that in which direction your leap would be, right? Hurdles will come, hurdles will come even after you think yourself to be successful. I passed my graduation. I got placed in one of private sector automobile companies, Mahindra. I must be that you all are acquainted with that company. I was placed in Bhubaneswar. Right. Very excited. First job. Very enthusiastic. I was selected in the first tray of that selection process. It was a great moment for me, for everyone. Then the tragedy happened. There was some deficiencies in their organization. I on this platform cannot blame anyone, and don't quote me on that. That I'm not blaming anyone, but there might be some deficiencies from their end or from my end, some communication gap. Finally, I lost my job. I was I was blank. I Because that was the first moment in my life when I knew that what it felt when expectations break. Really, when expectations break, what it feels for a person, for a young technical graduate or anyone. It took me a lot of strength to overcome that thing. I didn't had any adjacent plans. I didn't had any like anything with me as an alternate option. I was in the mid of an ocean without a sail, without a sail. I had to take a call. I had to judge myself which way to head. I did a lot of researches. I met with people. I met with my friends. I discussed with them. I discussed with a lot of them, but nothing was hitting me there. That I didn't want a lifestyle which which people wanted me to have. I wanted to have something which I would love to do. Finally, I started preparing for banking examinations, IBPS, SBI. I started preparing from 2018 end, first year, almost mid 2019. I failed almost each and every competitive exam that I faced. Each and every. See, the point that you can take with you, extract from this thing that, my dear friends, success is very easy to handle. Failure takes a lot of strength for your acceptance. Failure is something for a person. It depends on a person to whom the failure is being pointed towards. One person who has worked a lot for something, and one person who hasn't worked is on a fluke, it would not affect him. But who has worked for something, failure takes a lot. Failure takes a lot to overcome. But I would only say that success doesn't teach you. Success can make you overconfident, but success cannot give you experience. When I entered into this era of competition,
I'm sure you might be the phase that I'm discussing is very rapidly heading towards all of you guys. You have to face these all things. So I am very thankful to Masterclass that they have created such kind of initiative that experience this experience you won't be getting anywhere. You can read books, you can Google everything, but the live experience which people can provide you there, which they have gone through, is the most precious thing that you can use in your preparation. I failed in almost every examination. I was like wondering that, am I made for this? Am I on the right track, or I have done something wrong with myself, with my career, with my time? Years were passing. People's fingers were pointed out at me. I I was not in a state of mind to digest something, to uh, give an explanation to someone that okay, this went out wrong or that went out wrong. I was nowhere. I hadn't passed a single preliminary examination. I started analyzing myself, that where did I went wrong, or what are my weak areas and what are my strengths. You have to figure out at a particular point of your life, whether it be your 11th boards, whether it be your 10th boards, whether it be your graduation entrance examination. You have to figure out before that hurdle, that what are your areas, what are your strengths, what are your weaknesses, which area to work on, which area to overshadow. So I would move with my story that from 2019 end, I started clearing some examinations, only preliminary ones. I started building up confidence in myself that yes, I am built for something. This is the particular thing, my dear friends. When you prepare for something, you will find a lot of people around you to suppress you down. You will find a lot of people to to submerge you under the ocean of depression. They will just what can I say? They will not let you move ahead. Right? But your motivation is you yourself. There's no better person who can understand other than you yourself. You know yourself well. No video can motivate you. It can infatuate you, but it cannot motivate you. Your motivation is you yourself. 2019, I appeared for IBPS PO. I cleared the preliminary. 2020, I appeared for mains. I cleared the mains. I went for the interview. My interview went very well. When my marks came, the mains marks were uh, almost 19, almost approximately 20 marks above the cutoff marks, which was what was decided by the IBPS for general category. I was very happy. We were very sure. We started celebrating. I started celebrating with my friends. We were damn sure that this particular thing has to is going to happen. I started making expectations. I started making dreams. The day of result came. I was not selected. You want to know by how much marks? It was zero point 0.4 marks. Just that minute, thin, microscopic line, which prohibited me from going that far. And I was shaken. I was broken. I had no options with me. I felt like the world was over. The luck was not with me. The favor was not with me. My destiny uh, has abrupted me. That particular moment of failure. This is the best teacher which can make you or break you.
It can either make you a person who you want to be or much more than that, or it can break you down. Why? Failure. What is failure? Failure is something which we know that which can happen to me, but my mind, my heart is not ready to accept the thing that I cannot fail. No, no, no. Something's good going to happen to me. Something bad cannot happen with me. We are just overshadowing the truth. We are just overshadowing the truth. Failure for a person, a failure. There are two kinds of person. For a person, failure can be the teacher can figure out what went wrong, what went right. He can put in double efforts. He can take up a challenge. Either you just accept the fact that it is not made for me. It is impossible for me. But my dear friends, impossible itself means I am possible. There's nothing as such impossible in this world. I again worked hard, and I don't know where my destiny would take me, but presently I am uh, recruited as a deputy manager band 1 in ICICI Bank. I was also selected in some other banks, Axis Bank. Recently, yesterday I was late due to my SBI mains examination. By the mercy of God, if I don't know where my destiny will take me, but I have understood one particular thing, one particular fact, that whatever happens to me, whatever happens to me, how much big the failure is, I am not going to quit. And I would strongly suggest all of you guys, never quit, never quit. Because if you quit, if you feel that you cannot, if you feel that you cannot, no one can raise you up. Because the people out there, the faces confronting you, all of they are holding a banner that you can't do. Even if you hold the same banner that I can't, you're finished. You have to, you have to swim against the flow. You are very young. You guys are very young. You have a whole lot of career, whole lot of opportunities open in front of you. I say work hard. Working hard doesn't mean 20 hours I'm sitting into the book and I'm sitting into the stuff, all kind of reading stuff, learning stuff. No, life is only once. This particular period of time is also only once. Enjoy your life to the fullest, because when this is happy, then only your books can cooperate with you. Then only your lessons, your uh, theories and theorems can cooperate with your mind. If your mind is not cooperating with you, is not happy, no studies, hours and hours of study goes into vain. Choose a career. No career is bad. No career. Each and every stream, each and every career has got equal opportunities. Either be it commerce. I have heard a lot of people saying that बंदे ने कॉमर्स ले लिया यार, इसमें कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है. No, it's a vague question. Have you seen a chartered accountant? That particular person is equivalent to a public service officer. Is equivalent. People take arts who pursue who wants to pursue a UPSC career. Right? See, these examples are just sectional. I'm not. I want to tell you in a generalized way. Choose that which which would produce something in future for you. For example, if you take commerce, you should know that at the end of this stream, at the end of this journey, they should pay me off, pay me back. That should pay you back. You will say that I am a technical graduate, I'm going into a banking profession, I'm in a banking profession. Then how can you say that it's paying? Yes, it's paying me, my dear friends, it's paying me.
Engineering is not only about machines. Engineering is not only about uh, the theorems and the calculations. No, the, the positive vibes that you extract from your stream, the learnings that you extract from any of your stream, anything, either be it punctuality, either be it accuracy. Engineering, one of the main things of engineering is accuracy. For a civil engineer, 0.11 mm or nanometer, a measurement of that uh, accuracy can make devastating changes, can can do blunders. So we know the importance of accuracy. That accuracy I can use it somewhere else. People say that go behind your passion, go for what you love to. But I want to say one thing, a bitter truth, that, my dear friends, the bitter truth is that the biggest passion in this world is money. Yes, it might sound awkward, it might sound vague to some people, but yes, if you have money, you have everything. Money means you earn money, not from wrong deeds, but from your hard work. Run after your passion. You should run after your passion, but only when you have a strong brace behind you, that if you fail, that is going to pick you up and you can run again. A small child, for example, a small child who cannot walk, who cannot crawl, if you leave him between 10 kids playing in a park, what do you think that it will happen with him? Will he head out somewhere? Will he enjoy? No. Why? Because he hasn't learned to stand yet. Similarly, run after your passion, go after your passion, but only when you have a strong foot engraved in your place. Build a beautiful career. When you have your own money, you have you can have any passion you want in your life. But without money, nothing happens. This is the real world and the real world. Both are days apart. Don't compare. You are quite young. You guys watch. You are very like appealing towards web series, towards internet. There's a lot of stuff out there. Watch them, take out the positives, but do not interrelate with your real life. Real life and real life never is same, can never be same. In real life, you have to make a strong career, and for a strong career, the most important thing which I want to say is that from now itself, make a goal for you. Goal doesn't mean that I want to be an IS officer or I want to be something big. No, that is not goal. That is ambition. Goals can be small. Just set out small goals for yourself. Uh, 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 Suppose you are a traveler and you don't know where you want to reach. You have no destination. What do you think you will do? But you will end up only in the path. You will head up only in the path. That is not life, my dear friends. That is not life. Make a goal, make a target that yes, I want to reach this particular place. Nevertheless, my passion is something. I want to be a cricketer, I want to be a singer, I want to be an actor. You can become. But before that, you have to brace yourself with a prominent career. Go after a prominent career, build a beautiful career. You are very young. You will, if you start from today, you will be the gems of tomorrow. Build a beautiful career, then pursue your passion. That will be the most amazing moment of your life, my dear friends. That will be the most amazing moment of your life. Second thing, never ever go down due to your failures. Never get broken from your failure. Failures hurt, that should hurt. If failures won't hurt, that means you are not serious.
failure should hurt, but that hurting should transform you into an even more stronger human being. Okay, so I have a reminder that a few minutes are left. So I want to give you guys this last 2 minutes. If you want to ask, if you have any queries, if you want anything to clarify with me, I'm ready. Over to you. Thank you so much, Mr. Shocker, for sharing the experiences and the valuable lessons that you have acquired through the course of your journey in life. I hope the students will find it inspiring and motivating to overcome the hurdles of career and life as well they are going to face in their lives. I'd like to request if anyone is having any question or comment, please come up with your questions or comments. You can write it in the chat box or you can simply unmute yourself and ask. Is there anyone? Okay, I think no one is willing to turn up. Uh, Thanks again, sir, for joining us this session and sharing your life lessons. Thanks a Thanks a lot. lot. So now we move on to the next talk of the session, which will be delivered by Mr. Keshav Chandra Dinda. He is one of the members of Masterclass uh, Association. He is going to talk about the career in defense today. The topic of his talk is, do you have it in you? So over to you, Mr. Dinda. Welcome to this session. Are you there? So welcome to the session. The screen is yours. You can proceed. Can you hear me? Hello? Hello? Mr. Dinda, can you hear me? Mr. Dinda, can you hear me? Hello. Hello. Am I audible? Yes, yes, sir, you are audible. Can you hear me? हाँ Uh, so welcome to the session. You can हाँ हाँ proceed सुनाई with your सुन हाँ presentation. yeah. Good evening, everybody. This is Keshav Chandra. आज हम लोग डिफेंस में कैरियर को लेकर के कुछ डिस्कस करेंगे। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कितने लोग यानी कि कितने डिफेंस एस्पिरेंट्स अभी तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। Am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay, how many defense aspirants are there? Students, if you please respond. So we have got one response from Krishna Dubey. She is saying yes, sir. Only one. Okay, only Okay. one. Okay. Okay, कोई Responses are बात नहीं, coming ठीक है। from तो Annapurna. Okay. अन्नपूर्णा श्रीवास्तव, राइट? अच्छा, हम लोग कुछ वन ऑन वन टॉक करते हैं। कृष्णा दुबे और कौन है, अन्नपूर्णा श्रीवास्तव। आप अपना माइक ऑन करेंगे।
आप दोनों के लिए, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, उनके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन है मेरा कि डिफेंस में कौन कौन जॉब करना चाहता है। प्लीज अपना माइक ऑन करिए और मुझे जवाब दीजिए। चित्रदीप, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। Yes, one reply is there from Krishna. She's again saying yes, sir. I think she want to proceed. She wants to proceed with job in defense, as you were asking. क्या मैं वन ऑन वन टॉक कर सकता हूँ उससे, मतलब इस प्लेटफॉर्म पे पॉसिबल है अभी? Here, there is no such restriction. If mutual agreement is there, then it is possible. ओके, तो जो भी डिफेंस एस्पिरेंट है, कृष्णा, आप अपना माइक्रोफोन ऑन कीजिए, ठीक है। मुझे कुछ सवाल जवाब करने हैं आपसे। Yes, sir. Yes, sir. My mic is on. Please ask. ओके, Okay, I think the student तो is आप using someone else's account. Okay, ठीक है। fine. हाँ, जो भी डिफेंस एस्पिरेंट है वो अपना माइक ऑन कर लीजिए, ठीक है। और आप मुझे ये बताइए कि आप डिफेंस में जॉब करना चाहते हैं, तो क्यों जॉब करना चाहते हैं? सर मेरा मन है उसमें जॉब करने का, इसलिए। अच्छा, आपका मन है। और ये कब से आपको लगा कि आपको डिफेंस में जॉब करना चाहिए? क्या आपको लगता है डिफेंस एक जॉब है? नो सर, लगता तो नहीं है, पर एक तरह की जॉब ही है वो भी। ड्यूटी अच्छा, थी। एक तरह की जॉब है। आपको क्या लगता है कि आप क्या फील करते हैं कि डिफेंस आपके लिए क्या है? इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, और वो जो वर्दी वो पहनते हैं, जो स्टार्स उनके कंधे पे लगे रहते हैं, ठीक है, उससे आपको क्या, ऐसा क्या, मतलब आप बताना चाहेंगे मुझे बताइए, ठीक है, कि ऐसा कौन सी चीज है जिसके लिए आपको प्रेरणा मिलती है कि आप डिफेंस फोर्सेस या इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करें? सर मैं अपने इंडिया के लिए वर्क करूंगा तो मुझे प्राउड फील होगा। अच्छा, आप इंडिया के लिए वर्क करना चाहते हैं, मतलब इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जॉब करते हैं वही इंडिया के लिए वर्क करते हैं, बाकी लोग वर्क नहीं करते? नहीं नहीं, करते हैं, एकदम करते हैं, सब करते हैं वर्क। बाकी लोग करते हैं। तो ऐसा क्या है, मतलब आपको क्यों डिफेंस में ही जाना है? सर अब तो मेरा मन है ना। बताइए। अच्छा, आपका मन है, नहीं मन कुछ ऐसा होगा ना, कोई सपोज आपको कहीं प्रेरणा, कोई आपका कोई प्रेरणा स्रोत होगा, ठीक है, आपने कोई मूवी देखी होगी, आपने कोई किसी पर्सन को देखा होगा डिफेंस फोर्सेस में, किसी से बात किया होगा, किसी से मिले होंगे, ठीक है, वो प्रेरणा का स्रोत कौन सा है, और आप ऐसा कौन सा चीज है जिसके लिए आप फैसिनेटेड हैं? सर मैंने कई लोग का सुना है, वो लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, तो मैं आर्मी नहीं, मैं एयरफोर्स में जाना चाहता हूँ, इसलिए। अच्छा, आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, ठीक है, यस सर। ओके, कोई बात नहीं। तो आप एयरफोर्स में क्यों जाना चाहते हैं? सर जब मैं छोटा था तो मुझे प्लेन देख के बड़ा अच्छा लगता था, और अच्छा, उसके ओके, बाद से पेरेंट्स की गाइडेंस में थोड़ा सा बताया गया मुझे उसके बारे में, तो फिर मेरा मन किया कि मैं उसी में जाऊं। अच्छा, आपका मन किया बस एट रैंडम, ठीक है, मतलब आपको बचपन से ही एयरफोर्स में जाने का मन है, दैट्स इट।
चलिए, ओके, थैंक यू थैंक यू दुबे सर। जी। ठीक है, यस सर। और कोई है यहाँ पे डिफेंस एस्पिरेंट? उससे भी थोड़ा वन ऑन वन टॉक हो जाए। एनीवन? इज देयर एनीवन? आई थिंक नो वन। कृष्णा, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो फिर से माइक ऑन करिए यस सर। और मुझे ये बताइए कि आप एयरफोर्स के बारे में क्या जानते हैं? सर उसमें एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, मेडिकल, फिजिकल एंट्रेंस एंड एग्जाम आईक्यू होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट एंड और भी बहुत कुछ। हम्म, और कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं? सर अब इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, वही मैं जानने के लिए बोला था इस ग्रुप में कि मुझे आपसे पता चले अच्छा, थोड़ा इसके बारे में। अभी आप कौन से क्लास में हैं? सर 10th। अच्छा, आप अभी 10th में हैं, यानी कि आपके पास अभी बहुत बहुत समय है। ठीक है, आपके पास कम से कम 2 साल हैं। ठीक है, अगर आप +2 के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कैरियर क्या परस्यू करना चाहते हैं? मतलब एयरफोर्स भी बहुत बड़ा एक ये है, ठीक है, डिपार्टमेंट है। उसमें आप कौन सा, आप वहाँ पे एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं, या फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहते हैं, या नॉर्मल ग्राउंड ड्यूटी करना चाहते हैं, या क्या करना चाहते हैं आप? आपका ड्रीम पैशन क्या है एयरफोर्स में जाने के सर बाद भी? फ्लाइंग ब्रांच, सर फ्लाइंग ऑफिसर। अच्छा, आप फ्लाइंग ऑफिसर बनना चाहते हैं। यस सर। तो फ्लाइंग ऑफिसर तो सभी हो जाते हैं जो भी एयरफोर्स में रिक्रूट होते हैं आफ्टर ट्रेनिंग ऑफ 1 ईयर इन AFA, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद। ठीक है, यस उसके सर। बाद वो सभी के सभी फ्लाइंग ऑफिसर बनते हैं। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिपार्टमेंट, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कार्डर। यस लेकिन सर। आप काम क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं ये सारे सवाल जवाब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं, ठीक है, कि जो भी अफसर बनने जाते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में, ठीक है, आप अब अपना एयरफोन बंद कर सकते हैं, जब भी जरूरत पड़ेगा मैं आपसे डायरेक्ट पूछूंगा। ठीक है, तो पहली बात, डिफेंस में काम करना ये कोई जॉब नहीं है। अगर आपको जॉब चाहिए तो आप रेलवे ज्वाइन करिए, बैंकिंग ज्वाइन करिए, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज ज्वाइन करिए। डिफेंस इज नॉट अ जॉब, डिफेंस इज जस्ट अ प्रोफेशन। ठीक है, और जब तक आपका उसमें पैशन नहीं होगा, अगर आप बहुत ज्यादा पैशनेट नहीं हैं तो आप डिफेंस में नहीं जा सकते। ठीक है, यू शुड बी पैशनेट अबाउट दैट, वेरी मच पैशनेट अबाउट दैट। ठीक है, और अब क्या है, पैशनेट मतलब मीन्स कुछ बताइए। कैरियर, पैशनेट मतलब आपको उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी रखनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा आपको एक, ऐसा नहीं है कि डिफेंस एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा मतलब किसी चीज में स्पेशलाइज्ड होते हैं। वो लोग एक नॉर्मल बंदे होते हैं, एकदम नॉर्मल हमारे जैसे ही। ठीक है, लेकिन उनमें कुछ क्वालिटीज होती है, कुछ क्वालिटीज जो सब में नहीं होती। ठीक है, हेलो, हाँ, आप यस सर। डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, करिए। हाँ, पूछिए पूछिए। क्या बोल रहे थे, पूछिए कृष्णा, पूछिए। ये सर पूछ लिए पैशनेट का मतलब सर पूछ रहा था मैं। सर तो किस तरह का जागरूक, अच्छा, मतलब अभी पैशनेट का तो मतलब पूछ रहे थे। जानना है ना उसके बारे में। क्या चीज, कैसी? सर अभी मुझे जानना है ना उसके बारे में, तो पहले से ही कैसे पता रहेगा? नहीं, मैं खुद देखना चाहता था कि आप कितने पैशनेट हैं। ठीक है, जो जिसे भी उस चीज में जाना होता है वो उसकी जानकारी रखता है। अच्छा, जैसे सपोज आप क्लास 10th के बाद क्या करना चाहते हैं? आपने क्या सोचा है, सर क्या लेंगे, पढ़ेंगे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, क्या लेके पढ़ेंगे? कुछ तो जानकारी होगी, थोड़ा बहुत तो जानकारी लिए होंगे। यस सर, साइंस मैथ्स। एयरफोर्स के बारे में आप मुझे क्या बता सकते हैं?
आप बता सकते हैं एयरफोर्स में कितने रैंक्स होते हैं? अरे सर मैंने मुझे कुछ इतनी बोला था जानकारी नहीं है इसकी। बार बार बॉयज और गर्ल्स ग्रुप में मैंने कुछ ये किया था, 15 OLQs, 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। क्या आपने वो चीज एक बार ध्यान से पढ़ा, कहीं सर्च वर्च किया, कुछ ढूंढा? कुछ बताइए OLQs के बारे में। नो सर, मुझे तो नहीं पता है इसके बारे में। अच्छा, आपको नहीं पता। आपने सर्च किया होगा मेरा मैसेज पढ़ करके, किया था क्या? नो सर, एक्चुअली स्कूल की क्लासेस इतनी ज़्यादा है ना कि उसके लिए मुझे अभी टाइम नहीं मिला, इसीलिए मैं मीटिंग ये सब ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। इसीलिए आज की मीटिंग मैंने चेंज करवाई थी टाइम। अच्छा, कोई बात नहीं, ओके। लेकिन मेरी बात ये जानिए, ठीक है, कि अगर आप किसी चीज पे, किसी चीज के लिए पैशनेट हैं, बहुत ज्यादा पैशनेट हैं, तो उसके लिए आप टाइम निकालेंगे, ठीक है, वो आपका इंटरेस्ट है, वो आपकी हॉबीज में शामिल होती है, ठीक है, तो आप उस चीज के लिए समय देंगे, खुद ब खुद देंगे, मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि आपको वो चीज करना चाहिए। जैसे ही आपको पता चल लगे नहीं 15 OLQs होते हैं, तो एटलीस्ट आपने सर्च किया होगा या आपने ऐसे ही छोड़ दिया? सर मैं एक संडे को एक्चुअली फ्री रहता हूँ, तो फिर आज ही सर्च मैं करता उसके बारे में। आप बताते ना आज तो। अच्छा, आज आज ही करते, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, मैं भी बताऊंगा, कुछ कुछ चीजें मैं नॉर्मली डिस्कस करूंगा, ठीक है, कि कितने सारे एंट्रीज इसीलिए होते हैं, कौन। बोलिए बोलिए। सर, इसीलिए तो आपसे एक बार बातचीत करना चाह रहा था इसके बारे में। आपके आपसे जानना चाह रहा था इसके बारे में। हाँ, आप क्या जानना चाह रहे हैं, बताइए। सर मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करनी है और कैसे, मतलब इसको कंप्लीट करना है, इसको अचीव कैसे करना है, ये आप मुझे बता दीजिए। अच्छा, स्टार्टिंग कहाँ से करना है, देखिए, तो जहां तक स्टार्टिंग की बात है, आपको अभी से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। ऑफिसर कोई इनबॉर्न क्वालिटीज नहीं है, ठीक है। ऑफिसर क्वालिटीज जो होता है, वो कुछ चीजें को अपने अंदर इनकलकेट करना पड़ता है, अपने अंदर लाना पड़ता है, ठीक है। आपको एक प्रॉपर, आप आर्मी वाले को कैसे देखें, आप लोग मूवीज में देखते होंगे, नॉर्मल दूसरे दूसरे चीजों में बहुत जगह आप देखें, आर्मी ऑफिसर्स, नेवी ऑफिसर्स, उसमें खास बात आपको क्या दिखती है, बता सकते हैं कृष्णा? क्या खास सर बात दिखी, ऐसा क्या दिखा कि जो डिफेंस पर्सनल्स होते हैं वो नॉर्मल सिविलियन से उनका अंतर होता है, क्या अंतर होता है उनमें? हेलो कृष्णा, एम आई ऑडिबल? मतलब क्या बताना है। मैं ये पूछ रहा हूं कि नॉर्मल, जैसे नॉर्मल जो सिविलियन होते हैं, ठीक है, और जो डिफेंस पर्सनल होते हैं, उन लोगों, उन दोनों में क्या अंतर होता है, क्या खास चीजों में अंतर होता है दोनों में? नॉर्मल पर्सन में तो कुछ बात नहीं है, लेकिन डिफेंस पर्सनल में ये बात है। वैसे कौन सा चीज, ऐसे तो नॉर्मली सभी वर्क करते हैं, सभी प्रोफेशन में हैं, सभी काम कर रहे हैं, सभी के अच्छे खासे सैलरी हैं, ठीक है। फिर इतना मेहनत वाला जॉब है, डिफेंस में आप क्यों जाना चाहते हैं? इतनी मेहनत मशक्कत है, इतना हार्ड ट्रेनिंग है, ठीक है, और ऐसे ऐसे जगह पे ड्यूटी मिलता है, और उन सभी चीजों को, अब ऐसा थोड़ी है कि आपका सिर्फ बहुत आराम वाली जॉब होगी, आराम वाला जॉब हमेशा नहीं होता। उसी में से कुछ कमांडोज निकलते हैं, उन्हें अब अच्छे अच्छे ऑपरेशंस में, ट्रिकी ऑपरेशंस में भेजा जाता है, ठीक है। उस वो सारे ऑपरेशंस को वो लोग जीत करके आते हैं, लड़ाइयां लड़ते हैं, ठीक है। तो आप नॉर्मल प्रोफेशन से कुछ हट करके चुनना चाहते हैं, ठीक है, तो इसलिए कुछ हट करके उसमें बात होगी ना। उसमें क्या अंतर है नॉर्मल पर्सन में और जो सिविलियंस हैं और जो आपके डिफेंस पर्सनल्स हैं, उनमें क्या अंतर दिखता है आपको, ये आपको बताना है। मेरा सर एक सवाल वो समझ में आया? एक अच्छा प्रोफेशन है सर, एक वो, और वो बहुत ही पंक्चुअल होते अच्छा हैं। प्रोफेशन है, पंचुअल होते हैं, गुड। एक चीज, चलिए एक क्वालिटी आपको पता चला कि वो पंचुअल होते हैं, ऑन टाइम, एवरी टाइम, मतलब वो हर वक्त ऑन टाइम होते हैं, कोई भी काम करना हो उनका पंचुअलिटी तो होता है। और क्या होता है? नैन्सी, मिस नैन्सी, आई थिंक यू आर रिप्लाइंग। मिस नैन्सी कुछ रिप्लाई कर रही हैं, आप चाहें तो
अपना स्पीक ये माइक्रोफोन ऑन करके मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं। बोलिए, और बताइए कृष्णा, और बताइए। 20 मिनट हो गया कृष्णा, मैं बहुत जल्दी कंक्लूड कर दूंगा। सर वो अपने वर्क के प्रति बहुत जागरूक होते हैं। जागरूक होते हैं? कैसे? बाकी लोग नहीं होते क्या? सर बाकी लोग मतलब नहीं अगर होते? उनकी ऑनेस्टी से काम नहीं करते? नहीं करते हैं, मतलब अगर उन्हें करते कोई हैं। वर्क दिया गया है तो मतलब वो उन्हें पूरा करना है, वो इस सोच को लेके आगे बढ़ते हैं। जरूरी थोड़ी है। तब इतने सारे आर्मी ऑफिसर्स जिनके अगेंस्ट में वो चल रहा है, क्या बोलते हैं, बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स बहुत सारे क्या बोलेंगे, मतलब मिस डीड या मिस एक्ट में फंस जाते हैं, ठीक है, या उनको गलत ठहरा दिया जाता है, ह्यूमन राइट्स वाले उनको गलत बताते हैं, ठीक है, उनके साथ भी बहुत सारी गलतियां होती है। ऐसा थोड़ी है कि वो लोग हमेशा हर चीज काम को सही तरीके से करते हैं या ऑनेस्टी दिखा के करते हैं। यस सर। तो मिस नैन्सी, मैं अब आपसे बात करना चाहूंगा। कृष्णा हेलो। दुबे, थैंक यू, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अपर्णा बताइए। मैं कह रही थी कि सब वो अपनी ड्यूटी से, उनके लिए अपनी ड्यूटी से बढ़कर कुछ नहीं होती है। वो हमारे लिए मतलब वो हमारे लिए, अपने देश के लिए ड्यूटी करते हैं। हमारे देश के लिए ड्यूटी करते हैं। तो बाकी लोग, सपोज कोई फैक्ट्री वर्कर्स हैं, कोई टीचर है, कोई दूसरा इंडस्ट्री में काम करता है, कोई मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करता है, वो हमारे लिए काम नहीं करता? तो वो करता है, बट वो अपनी मतलब अर्निंग के लिए, अपनी सैलरी के लिए, अपनी अच्छा। फैमिली के लिए पहले अपर्णा, सोचते हैं। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? सर आई एम 12th क्लास। अच्छा, आप 12th में हैं, और आप आगे जा करके क्या करना चाहती हैं? तो मुझे तो भी मतलब एयरफोर्स में उतना इंटरेस्ट नहीं है, बट मुझे उनकी ड्यूटी बहुत अच्छी लगती है। मतलब उनका जो जॉब है, वो जो करते हैं अपने देश मतलब के क्या लिए, वो क्या आप बहुत आगे बढ़ अच्छी है। करके क्या आप आगे बढ़ करके डिफेंस को एज अ कैरियर चुनना चाहते हैं? डिफेंस में काम करना चाहते हैं? इंडियन आर्म फोर्सेस में उसका हिस्सा बनना चाहते हैं? नो नो सर, नो तो नहीं, मैं आप नहीं मतलब बनना मुझे चाहते हैं? मुझे मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो डांस अच्छा, ठीक है। है। और कोई मुझे डांस थैंक यू अपर्णा, थैंक यू अपर्णा। और कोई है हमारे पास जो हमारे डिफेंस एस्पिरेंट्स हो? सर हम लोगों के लिए देश सबसे आगे होता है। पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आयुषी। आप सर आई एम आयुषी, आई एम स्टडिंग इन क्लास 12। अच्छा, आप भी क्लास 12th में पढ़ते हैं, ओके। आप मुझे बताइए, क्या आप डिफेंस में अपना कैरियर एज अ कैरियर ज्वाइन करना चाहते हैं? सर ये ड्यूटी मुझको अच्छा लगता है। और आप, अच्छा लगता है, आप ज्वाइन नहीं करना चाहते? नो सर। अच्छा, आप भी ज्वाइन नहीं करना चाहते, मत मीन्स हमारे पास सिर्फ एक ही डिफेंस एस्पिरेंट है और कोई नहीं है? ओके, चलिए हम लोग अब मेन ट्रैक पे आते हैं, ठीक है, कि इंडियन आर्म फोर्सेस में वो मतलब व्हाट दे सीक्स, ठीक है, वो अपने डिफेंस एस्पिरेंट्स में ऐसे कौन कौन से गुण देखते हैं, ठीक है, कौन कौन से गुण देखते हैं, कौन कौन से क्वालिटीज देखते हैं, जो 15 OLQs है, मैंने कहा था, ठीक है, देखने के लिए। वो 15 OLQs मैं एक बार डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। तो ये जो 15 OLQs है, इसका मतलब होता है 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। इन्हीं 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज पर सारे कैंडिडेट को एसेस किया जाता है, ठीक है, चाहे वो वेदर किसी भी कार्डर में ज्वाइन करना चाहते हो, कोई भी कमीशन में ज्वाइन करना चाहते हो, किसी भी एंट्री स्कीम में जाना चाहते हो, ठीक है। यही कुछ 15 क्वालिटीज
के आधार पर उनको जांचा जाता है, उनको परखा जाता है, और इन्हीं का टेस्ट होता है 5 डेज एसएसबी एग्जाम में, एसएसबी इंटरव्यू में। ठीक है, जब हम इंडियन आर्मी में जाते हैं, ठीक है, तो वो कहा जाता है एसएसबी, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, जब हम मतलब एयरफोर्स में एंट्री देते हैं तो वो कहा जाता है एएफएसबी, एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड। और जब नेवी में जाते हैं तो दैट इज एनएसबी, नेवल सिलेक्शन बोर्ड। कोस्ट गार्ड में भी कोस्ट गार्ड का अपना प्रिलिमिनरी सर्विसेज बोर्ड होता है, फिर फाइनल सर्विसेज बोर्ड होता है। ठीक है, तो इनमें देखा क्या जाता है, सिर्फ 15 OLQs। उन 15 OLQs को 4 फैक्टर्स में हम बांटते हैं। ठीक है, पहला है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, दूसरा है सोशल एडजस्टमेंट, और तीसरा है सोशल इफेक्टिवनेस, और फोर्थ है डायनेमिक। अब इनमें देखते हैं कौन कौन से गुण हैं। तो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटीज में 4 गुण हैं। ठीक है, एक है इफेक्टिव इंटेलिजेंस, EI, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन। अब इसको डिस्क्राइब करते हैं थोड़ा कि इफेक्टिव इंटेलिजेंस क्या है। ठीक है, इंटेलिजेंस बहुत तरीके के होते हैं, आप लोग जानते होंगे। आप बेसिक इंटेलिजेंस मींस आपको आपकी सब्जेक्ट की समझ कितनी है। जैसे सपोज आप क्लास 10 पे पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स जो भी पढ़ते हैं। ठीक है, आप अपने सब्जेक्ट की जो समझ है दैट इज बेसिक इंटेलिजेंस। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं एक बार कि नॉर्मल बेसिक इंटेलिजेंस को जांचा जाता है वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग के हिसाब से। ठीक है, तो उसके आधार पर कुछ सवाल पूछे जाते हैं, उसका आप जवाब देते हैं, दैट इज ऑल्सो कम्स इन बेसिक इंटेलिजेंस। तो इफेक्टिव इंटेलिजेंस है क्या? इफेक्टिव इंटेलिजेंस है कि आपको डे टू डे लाइफ में कुछ छोटी बड़ी, ठीक है, महज बहुत छोटी बड़ी कुछ समस्याएं आएंगी। ठीक है, दैट विल बी माइनर डिफिकल्टीज इन डेली बेसिस। ठीक है, आप उसको कैसे टैकल करते हैं। ठीक है, आप उसमें कौन सा ऐसा चीज है जो अपने दिमाग से आप लगाते हैं, दैट इज इफेक्टिव इंटेलिजेंस। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी मतलब क्या है कि किसी भी चीज को अनबायस्ड रूप से तरीके से उसको सोचना, विचार करना और फिर उस पर तर्क करना। ठीक है, मतलब क्या है, सही गलत का समझ होना। ठीक है, दैट इज रीजनिंग एबिलिटी। अब ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी क्या है, जब कभी आपको कोई काम सौंपा जाए उसको वेल मैनर्ड तरीके से प्लानिंग के साथ ऑर्गेनाइज करते हुए आप सारे मैन मटेरियल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए उसको एक अच्छा अंजाम दें, एक अच्छे रिजल्ट तक पहुंचाए, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। अब चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी कुछ भी हो सकता है, एक पिकनिक अरेंज करना भी हो सकता है, घर में एक किटी पार्टी अरेंज करना भी हो सकता है, अपने आप को एनडीए के लिए तैयार करना भी हो सकता है, और अपने आप को दूसरे किसी एग्जाम के लिए तैयार करना भी हो सकता है। ठीक है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। अब पावर ऑफ एक्सप्रेशन बहुत अहम हिस्सा है। ठीक है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन मतलब आपको अपने शब्दों पर जोर होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या होगा, जैसे आर्मी या इंडियन आर्म फोर्सेस देखती क्या है, इंडियन आर्म फोर्स देखती है एक जेंटलमैन कैडेट, एक आम इंसान। उसको कोई बहुत स्पेशलाइज्ड बंदा नहीं चाहिए, एकदम ऐसा नहीं है कि जो क्लास में टॉपर है उसी को सिलेक्शन होता है, नहीं। ठीक है, 60%, 55% वालों का भी कल सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, लेकिन उनमें इन सारे गुणों का मतलब कुछ गुण है कि नहीं ये देखा जाता है। उनमें भी कुछ कोर क्वालिटीज होता है, कुछ और कुछ क्वालिटीज ऐसे होते हैं, मतलब कोर क्वालिटीज मतलब इनबॉर्न क्वालिटीज। ठीक है, आप जैसे घुलते मिलते हैं। ठीक है, ये आपका कोर क्वालिटीज में आता है, अभी बताऊंगा उसको भी, वो सब सारी चीजें डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन क्या है कि आप अपने आइडियाज, अपने जो विचार हैं, ठीक है, उसको आप ईज एंड क्लैरिटी के साथ अगले को समझा सके और अगला जो है वो समझ जाए, दैट इज पावर ऑफ एक्सप्रेशन। अब फैक्टर 2 में जाते हैं, सोशल एडजस्टमेंट क्या है, उसमें हमारे पास 3 क्वालिटीज हैं। एक है सोशल एडेप्टेबिलिटी, कॉर्पोरेशन और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल एडेप्टेबिलिटी क्या है, एक नॉर्मल इंसान, बहुत सारे इंसानों में ऐसा होता है कि वो कहीं भी अलग जगह दूसरे जगह जाता है, वो एडेप्टेबल नहीं हो पाता, या एडेप्टेबल होने में उसे समय लग जाता है, साल भर, 1 साल। लेकिन वो लोग ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहते हैं जो सोशली बिल्कुल एडेप्टेबल हो, मतलब वो कहीं भी जाए, घुल मिल जाए, दोस्तों के साथ दोस्ती कर ले, किसी भी अनजान आदमी के साथ दोस्ती कर ले, विचार कर ले, वो बातचीत कर ले। ठीक है,
ऐसा सोशल अडेप्टेबल इंसान वो डिफेंस सर्विसेज देखते हैं। फिर कॉपरेशन, कॉपरेशन मतलब क्या है? कॉपरेशन जैसे आप किसी भी ग्रुप गोल या नॉर्मल मतलब कोई भी चीज में काम करते वक्त आपका एक पॉजिटिव भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो उसमें, ठीक है। एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहे आप कुछ भी हो सकता है, किसी ने कुछ जैसे फैमिली मैटर पे आप घर में एक साथ बैठ करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपके पापा कुछ आपने आपके पापा ने कुछ आपको कहा, आपकी मम्मी ने कुछ आपको कहा, आपने कुछ विचार रखा उस पर, ठीक है। दैट इज कॉर्पोरेशन। ये सारी चीजें कॉर्पोरेशन में ही आती है, सोशल एडजस्टमेंट में ही आती है। फिर आप जैसे अपने दोस्तों के बीच में हैं, ठीक है, आप अपने दोस्तों के बीच में हैं और 4 दोस्त आपसे कुछ बोल रहे हैं, आप अपने दोस्तों को कुछ बोल रहे हैं, आपके दोस्त आपकी सलाह लेते हैं, ठीक है, आप अपने दोस्तों को पॉजिटिव सलाह देते हैं, आपके दोस्त आपको पॉजिटिव सलाह देते हैं, दैट इज कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये हर चीज में देखा जाता है, हर चीज में। फिर है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे अभी मैंने कृष्णा से बात किया, आयुषी से बात किया, ठीक है, अपर्णा से भी बात किया, तो ये लोग मुझे लगे कि हाँ रिस्पॉन्सिबल हैं, रिस्पॉन्सिव हैं, ये रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। मतलब इनको ऐसा है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं। अब मुझे कुछ चीजें खराब भी लगी, जैसे सपोज मैंने कहा था 15 OLQs एक बार देखिए। इससे पहले भी 2-4 जिनका मैंने PI लिया था उनको भी मैंने यही बताया, जो डिफेंस और UPSC मतलब सिविल सर्विसेज में जो अपना ये करना चाहते थे वो जरूर से जरूर इन 15 OLQs को देखें, ठीक है। तो इसमें रिस्पॉन्सिबल वही है जो अगले की बात सुने। जैसे सपोज मैं भी बहुत बार इंटरव्यू दिया हूं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैं सारी चीजों की जानकारी रखता हूं, लेकिन जब मुझे इंटरव्यू में पूछा गया कि ठीक है सर मैं इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन अब मैं इसके बारे में जानकारी हासिल करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा, तो दैट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगला फैक्टर पे आते हैं, सोशल इफेक्टिवनेस, ठीक है। वो सोशल इफेक्टिवनेस में हमारे पास 5 क्वालिटीज हैं। एक इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पीड ऑफ डिसीजन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप और लाइवलीनेस। तो इनिशिएटिवनेस क्या होता है? इनिशिएटिवनेस एक ऐसा क्वालिटी है, ये सबों में नहीं पाया जाता। कुछ होते हैं दब्बू, ठीक है, ये इनबॉर्न क्वालिटीज है, बिल्कुल शुरू से ही इनबॉर्न क्वालिटीज है। कुछ होते हैं थोड़े एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, और कुछ होते हैं इंट्रोवर्ट। जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो बिल्कुल खुले मिजाज के होते हैं, और इंट्रोवर्ट क्या होते हैं, वो थोड़े दब्बू स्वभाव के होते हैं। हमेशा यही देखा गया है कि जब भी कोई इनिशिएट करने का, कोई चीज शुरुआत करने का आपका बारी आता है, ठीक है, तो आप अगर पीछे हट जाएं तो फिर ये क्वालिटीज, इसका मतलब आप में नहीं है। तो ऐसे लोगों को डिफेंस में मतलब जगह नहीं दिया जाता, ठीक है। तो इनिशिएटिवनेस क्या है कि आप में ये काबिलियत होनी चाहिए कि आप किसी भी काम को किसी भी समय किसी भी तरीके से उसको शुरू कर सकें, ठीक है। जब उसमें GD ग्रुप डिस्कशन होता है, ठीक है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, ठीक है, ये सारे टेस्ट में यही देखा जाता है कि किसने इनिशिएटिव लिया, किसने अपॉर्चुनिटी लिया, किसने उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से ग्रैब किया और उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया। तो दैट इज इनिशिएटिवनेस, ठीक है। आप किसी भी चीज को अच्छे से सॉरी फॉर इंटरप्ट, ओके, ठीक है। अगला क्या है? इनिशिएटिवनेस के बाद जो अगला क्वालिटी है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस सभी समझते हैं कि अपने में काबिलियत। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस हर जगह चाहिए होता है, ठीक है। अब कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? तो कॉन्फिडेंस आएगा नॉलेज से। आपको जितना नॉलेज होगा उस चीजों के बारे में, जितनी जानकारी होगी, उतना आप में उस चीज में आपको कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस सड़क पार करने के लिए भी चाहिए, ठीक है, किसी एग्जाम को पास करने के लिए भी सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, किसी चीज की तैयारी करने के लिए या कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए भी सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। अगला क्वालिटी है स्पीड ऑफ डिसीजन, ठीक है। तो ये चीज देखा गया है कि आर्मी के पर्सनल्स जो होते हैं उनका डिसिसिव एक्शन बड़ा हाई होता है। वो लोग बहुत जल्दी और बहुत स्पीड से किसी डिसीजन को टेकअप करते हैं और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं,
ठीक है, ये सारी क्वालिटीज भी, स्पीड ऑफ डिसीजन की क्वालिटी भी उसमें देखी जाती है। अब एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, ठीक है, अभी मान के चलिए आपको आप कल के डेट में इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर बनते हैं, आपका एक प्लाटून होगा, आपकी एक रेजिमेंट होगी, ठीक है, आपको उसको कमांड करना होगा। अगर आप में वो काबिलियत नहीं होगी कि अपने ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने की, तो आप उसको किसी भी तरीके से कमांड नहीं कर सकते। मतलब अगर आप अफसर हैं, ठीक है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड में अगर आप अफसर हैं, तो आपको ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी होनी चाहिए। और लाइवलीनेस, लाइवलीनेस क्या है? आप बिल्कुल काम रहें, चेयरफुल रहें, ठीक है, सारे डिफिकल्टीज को हंस करके आप स्वीकार करें और उसको अच्छे, बिना डरे, बिना ये किए आप उसको खत्म करें। और चौथा फैक्टर जो है दैट इज डायनेमिक। डायनेमिक में क्या आता है? तीन है हमारे पास। एक है डिटर्मिनेशन, दूसरा है करेज और तीसरा है स्टेमिना। डिटर्मिनेशन क्या है कि आप किसी भी चीज को, जब किसी भी काम को कर रहे हैं, उसमें आप टोटली फोकस्ड हो, ठीक है, उसमें कितनी भी ऑब्स्टेकल्स आए, सेटबैक्स आए, कितना भी फेलियर हो, लेकिन आपको उसके प्रति डिटर्मिनेशन होना चाहिए। करेज क्या है? करेज है आप में हिम्मत कितनी है, ठीक है, उस चीज को करने की। आप में, आप अगर गलती से भी आप हिम्मत हार जाएंगे, ठीक है, तो ना तो आप आर्मी ज्वाइन कर पाएंगे, ना ही आर्मी में आप अगर आर्मी ज्वाइन कर भी चुके हैं तो ना ही अगर आपको कोई काम सौंपा जाता है तो उस काम को करने की आप में तब भी हिम्मत नहीं होगी, ठीक है। अगर आप फट्टू हैं, ठीक है, तो आप हमेशा ही फट्टू रह जाएंगे, ठीक है। आप कभी भी किसी भी काम को करने में हिचकिचाएंगे और पीछे हट जाएंगे। और स्टेमिना, स्टेमिना कोई इनबॉर्न क्वालिटी नहीं है, ठीक है। स्टेमिना बढ़ाया जा सकता है। जैसे आज के डेट में अगर आप 500 मीटर दौड़ते हैं, थक जाते हैं, लेकिन लगातार 2 साल तक अगर आप दौड़ते रहें तो ऐसा भी है कि आप 100 किलोमीटर का जो ये रनिंग होता है वो भी आप दौड़ जाएं, ठीक है। तो स्टेमिना बढ़ाया जा सकता है। तो ये कुछ हमारे पास 15 OLQs हैं जिसको कि आपको और आगे बढ़ करके आपको चीजों को इनकलकेट करना चाहिए, अपने अंदर लाना चाहिए, ठीक है। यही सारे क्वालिटीज को डिफेंस सर्विसेज में देखा जाता है। एंट्रीज बहुत सारा है हमारे पास। यूपीएससी एंट्री है। यूपीएससी एंट्री में भी 2 तरीके के एंट्री होते हैं, ठीक है। एनडीए एंट्री और नेवल एंट्री एक साथ होता है, ठीक है। फिर यूपीएससी के सीडीएस एंट्री होते हैं। जितने भी क्लास 12th एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनको ये कहूंगा कि आप जो है इंटरमीडिएट बहुत अच्छे से पढ़ें। इंटरमीडिएट पढ़ने के साथ साथ आप नॉर्मल, मतलब अगर जो साइंस ले चुके हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ साथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब इंडियन हेरिटेज, ठीक है, ये सब चीजों के बारे में आप जानकारी रखें, पढ़ें। और एनडीए में यही सारी चीजें पूछी भी जाती हैं। एनडीए में मैथ्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ जो बीटेक एंट्रीज, +2 में बीटेक एंट्रीज होती हैं, वो जो आज के डेट में मैं देखा गया, जैसे इंडियन नेवल एंट्री टेस्ट है, ठीक है, उसमें डायरेक्ट जेईई का जो मेंस का रैंक है उसके आधार पर लिया जा रहा है, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि आप बहुत अच्छे से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी पढ़ें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ने के साथ साथ आप जो नॉर्मल रीजनिंग, मतलब वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग है, उसकी भी किताब फॉलो करें, वो सब पढ़ें, ठीक है। और एक जिम्मेदार नागरिक बने। पहले तो एकदम जिम्मेदार मीन्स क्या कि आप अगर एक स्टूडेंट हैं तो अपने स्टडीज के प्रति ईमानदारी रखिए, 100% जो भी रखिए। अगर आप आगे बढ़ करके कोई एक गोल, ये किसी एक गोल का आप सोचे हैं, ठीक है, उसको ये करने के लिए, मतलब जैसे डिफेंस में आप अपना डिफेंस, पहली बात, डिफेंस एक जॉब नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। डिफेंस बिल्कुल एक जॉब की तरह ना लें। डिफेंस में आप डिफेंस की एक एसेट बन सकते हैं, लेकिन आप डिफेंस में काम नहीं कर सकते, आप जॉब नहीं कर सकते। डिफेंस में सब अपने स्वेच्छा से जाते हैं, ठीक है, अपने स्वेच्छा से ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं और अपने स्वेच्छा से वो वहां पे अफसर बनते हैं। तो डिफेंस एक ऐसा जॉब है, या जॉब तो है ही नहीं है, ठीक है, जॉब कहना बहुत गलत होगा। डिफेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप नहीं चुनते, डिफेंस आपको चुनती है। मतलब कुछ जॉब ऐसे होते हैं जिसका चयन आप नहीं करते, ठीक है, वो जॉब खुद आपको चुनती है। अगर आप में वो बात है तो डिफेंस आपको खुद चुनेगी, ठीक है। आपको बस उस काबिल बनना है और इन सारे 15 OLQs को अपने अंदर
अच्छे तरीके से लाना है। और जैसे ही आप इन सारे क्वालिटीज को अपने एसएसएस को शो कर देंगे अपने एसएसबी के दौरान, चाहे किसी भी एंट्री में, तो आप महज बिल्कुल एक वर्दी के काबिलियत रखते हैं। आपके कंधे में सितारे लगेंगे और आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में एक अफसर बनेंगे। ओके, तो कंक्लूड करते हैं। Thank you so much, sir. Although it was a bit disheartening to see the to see the moderate participation from the students, but I think in the long run they will मैं सोच realize. Yes. Do you want to say something, sir? हाँ, मुझे लगा कि कोई अभी तक डिफेंस के रिस्पॉन्सिबल बंदा कोई नहीं है, ठीक है, मतलब Okay, I think they are in too early stage in their careers. I think they will just manage to find their own way in order. नहीं, अर्ली नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो लोग ये चाहते हैं, जो लोग एनसीसी में कैडेट रहे होंगे, कुछ लोग इसमें होंगे, ठीक है, हमारे बैच में कुछ ऐसे भी होंगे जो एनसीसी खुद ज्वाइन करते, वो जानते हैं आर्मी की कैरिकुलम कैसी होती है, डिफेंस की कैरिकुलम कैसी होती है, ठीक है, तो वो आगे बढ़ करके जरूर डिफेंस में अपना ट्राई जरूर करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि और सजग हो जाए, ठीक है, और सजग हो जाए, महज और जानकारी रखें, रिस्पॉन्सिबल बने, पढ़े, ठीक है, जानकारी रखें, नॉलेज हासिल करें। Yeah, definitely. We also expect from the students for the same. And thank you again, sir, for joining with us and spending this much time from your taking out this time from your busy schedule. Thanks again, sir. We now move forward to this umpteenth session of this workshop, which is this curtain call ceremony, which will be mainly hosted by one of the founder members, Debasrita, and also hosted by Papia. So I'd now like to request Papia to take on the stage. Over to you, Papia, Debasrita. Thank you, Chief Pradeep. Hello, everyone. A very good evening to all of you. Myself, Debashrita, and I would like to thank all student and expert and member for their participation in this workshop to make it fruitful. Before beginning our curtain call ceremony, I request you, Chief Pradeep, to say a few words about your journey as a masterclass member. Oh, that's a very difficult task for me, Devasrita, you have assigned to me. Actually, yeah, this journey was quite adventurous for me because the job I am doing for masterclass, to hosting an event, was not my cup of tea, and never my articulation was that great to host an event. But somehow, yeah, I think I managed to do it, and also Amrita was there with me to assist, and she has done a marvelous job in order to host some of the seminar sessions. And yeah, I just enjoyed the month-long journey that we have been through with masterclass. Not only seminar sessions, we have arranged for personal interaction PI sessions, and also these some of the tests for the students. So I think this would be beneficial for all of them. I won't take much time, as Kuntolda and Devasrita and Papia repeatedly requested me to sing a song. Although I'm not a singer, not a professional singer, but I would like to sing a couple of lines from a very famous song sung by Harry Belafonte. The song is popularly known as Jamaican Farewell, and also try to sing a couple of lines from this Bengali version. So let me start. I'm so sorry, I'll be singing only in vocal because no other instrument is available with me. Okay. Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on the sailing ship. When I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way.
Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. আহা পথের প্রান্তে ওই সুদূর গায়ে যেথা স্বপ্ন থমকে থাকে বটের ছায়। আহা সন্ধ্যা দ্বীপ জলে তারার টিপ, কত ফুলের গন্ধে মোর মন মাতায়। হায় কোন সুদূর সেই স্বপ্নপুর, মোর মন যে গায় ঘরে ফেরার সুর। মোর পথ চেয়ে আজও সেই মেয়ে, বুঝি স্বপ্ন জাল বনে গান গে। হায় কোন সুদূর সেই স্বপ্নপুর, মোর মন যে গায় ঘরে ফেরার সুর। মোর পথ চেয়ে আজও সেই মেয়ে, বুঝি স্বপ্ন জাল বনে গান গে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you so much, Chitradit. And now I request Shoykot to say something to encourage our students. Shoykot, hello. Shoykot, are you there? Hello, Shoykot. Hello, am I audible? Yes, 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 yes. Oh, sorry for the interruption. So, You may proceed. Shoykot. oh, Yes. okay. Thank you. So let me start. So, am I audible? Hello. Hello. Yes, Soikot, you are audible. Oh, Yeah. sorry. 1 minute, please. 1 minute. You may. Please pardon me. Okay. No problem. Hello. Yeah, Hello? Hello. Yes, you are audible. Oh, Shoykot, you may sorry. proceed. So let me start. Good evening, everybody, and all of the participants of our class team and all of the student members. I congratulate all of them who have joined this innovative idea through the masterclass program and team. So I have been requested to give a talk, but so sorry to say that I am not such kind of speaker that I can say something, because my more than 2 or 4 years like that you. So just to wrap up in this wrap up session, I have to give the talk, but let me say you some small stories, 1 or 2 stories, which I think that will suit for you, right? So as most of you and most of us, we are in the young age that most of the participants of the master age group of 13 to 17 years as per the notification. So this time, this is the career formation time, and you must be always in other many difficult hello. Hello. Yeah, you are audible. Am I audible? Okay. Is it going on well? Yeah.
You Is this are, going on well? yeah, you are audible. Perfect. ओके, सो मैं हिंदी में बताता हूँ तब आपको समझने में सुविधा होगी। ये देखिए, आप लोग अब जिस उम्र में हम लोग जिस उम्र के जिस पड़ाव पर है, कि हम लोग जो भी कुछ सोच रहे हैं, जो हमें ये करना है वो करना है, वो सब कुछ हमारी चीज पर ही डिपेंडेंट है। वो है हमारा ड्रीम क्या है, जो हम अपनी जिंदगी में क्या अचीव करना चाहते हैं, राइट। सो हम जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं, वो हुई हमारी ड्रीम की साइड ऑफ और प्रैक्टिकल सिचुएशन, फिनेंशियल कंडीशन, इंटेलिजेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दिस थिंग दैट थिंग, बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो इस दोनों के बीच जो टग ऑफ वार चलता है, उसकी वजह से हमारे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, राइट। देखिए, ये स्टोरी तो सबको पता है। जो स्टोरी मैं बताने जा रहा हूँ, ये स्टोरी है समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन का स्टोरी सबको पता है। जब देव और असुर मिलकर टग ऑफ वार खींच रहे थे अमृत पाने के लिए और वगैरह वगैरह, जो सब वैल्यूएबल्स थे उसको पाने के लिए, या फिर अदर वैल्यूएबल्स निकले, महालक्ष्मी निकली, सब आपस में छीना झपटी करने लगे, जितने भी कीमती चीज थे अपने आप को पाने के लिए, राइट। पर देखिए, जब है निकला समुद्र मंथन की वजह से, जब पॉइजन निकला वहां से, तब क्या हुआ, सब भाग गए। और तब एक जन को ही मिला उन लोगों को, जब भगवान शिव के पास सब गए और महादेव से बताया कि आप इस पॉइजन को, इस जहर को धारण कीजिए, नहीं तो ये सृष्टि नहीं बचेगी। इस स्टोरी हम लोग को सबको पता है। पर इस स्टोरी से जो सीख मिलती है, वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत मैच करती है, स्पेशली इन दिस एज ग्रुप। वो क्या सीख है, मैं आपको जस्ट लिंक देता हूँ। वो क्या सीख है जो भगवान शिव हमें देते हैं उस स्टोरी से। जैसे अब समुद्र मंथन हुआ, वहां पर कहाँ भी प्रेजेंट नहीं थे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, नहीं थे। पर जब जहर निकला, तब उनके पास सब चले गए, जब आप जहर पी लीजिए, आपके सिवाय और कोई धारण नहीं कर सकता था। तो भगवान शिव ने क्या कंप्लेन किया, कोई, अरे तुम लोग तो अमृत पी रहे हो, तुम लोग तो वैल्यूएबल्स ले रहे हो, और मेरे लिए जहर है, क्यों पीऊं, जाओ अपना काम करो। ये सब तो नहीं कहा। वो जस्ट पूरा विष पी गए और अपने कंठ में धारण कर लिए। इससे यही मतलब निकलता है, क्योंकि उन्हें पता था कि इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मैं ही काबिल हूँ और मैं ही कर सकता हूँ। तो जब भी देखिए डिफिकल्ट सिचुएशन और आपके पास डिफिकल्टीज आ रही हैं जिंदगी में, आपकी फिनेंशियल कंडीशन अलग हो सकती है, आपको लग सकता है कि ये मुझसे नहीं हो सकता, वो एग्जाम क्रैक मुझसे नहीं हो सकता, मैं तो ये सब नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह। जो भी प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं, वो अगर विष की तरह हो, वो आपके पास आया है, तो आप भी शिव की तरह उस विष को पी लीजिए। क्योंकि आप, जिन्होंने जिन्होंने भी, जो कोई भी हो, वो गॉड हो या गुड गॉड पार्टिकल हो या गुड हो, जो भी हो, सब एक ही चीज अगर हो, जिन्होंने भी ये सब कुछ रचाया है, वो अगर आपको डिफिकल्टीज में डाल रहे हैं, कड़े सिचुएशन में फेंक रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम्स में जुझा रहे हैं, तब आपको समझ लेना चाहिए कि ये मुझ पाएगा, क्योंकि वो इतना ना इंसाफ तो नहीं है मुझसे करवाए दे जो मुझसे नहीं हो पाता। तो आप पढ़ाओ से, और अपनी फिनेंशियल कंडीशन हो और कोई डिसेबिलिटीज हो, इनेबिलिटीज हो, जो कुछ भी हो, आप उनसे थकिए मत, हारिए मत। क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी है, जीने के लिए तो बहुत छोटी है। अगर आप ठीक ढंग से जिए तो आपको लगेगा भी नहीं कि मेरी जिंदगी कब से कब गुजर, मैं डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, या फिर कब मैं कुछ ऐसा कुछ अचीव कर गया। जस्ट थिंक अबाउट दैट माई लाइफ इज प्रीशियस, राइट। एवरीबॉडी लाइफ इज प्रीशियस। आप एक चींटी को पीस करना चाहे तो वो भी रोकती है, आपको बाधा डालती है ना, जो मुझे मत मारो, वो भी कोशिश करती है बचने की। तो हम तो इंसान है, हमें तो और भी कोशिश बड़ी बड़ी होनी चाहिए। तो जब भी आप देखिए, हिस्ट्री में देखिए, साइंस की हिस्ट्री में देखिए, या फिर फिलोसॉफी के हिस्ट्री में देखिए, जब भी दुनिया के इतिहास में झांक कर देखिए, जिन्होंने भी अपना नाम रचाया है इतिहास में, उन्होंने किसी के स्कूल छूट गई,
तो किसी को पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाई, तो किसी को और कंडीशन झेलने पड़े, किसी को फैमिली नहीं मिली, तो किसी को और कुछ। पर बगैर सब कुछ उन लोगों ने वो करके दिखाया, जिसकी वजह से और दूसरों का भला था। तो बहुत अच्छी एक बात की कि आप लोग जिम्मेदार नागरिक बनी। जिम्मेदार नागरिक का मतलब यही है, जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने का मतलब यही है कि हम सिर्फ भारत देश के नागरिक हों, यही हमारा परिचय नहीं है। पर हम लोग जिस क्षेत्र में जाएं, जीवन के जिस क्षेत्र में हम लोग जाएं, वहां पर ऐसा कुछ इनोवेटिव, एक ऐसा यूनिक करके दिखाएं, जिसकी वजह से दूसरों और जैसे लोग हमारे जैसे हैं जो भूख रहे हैं, जिन लोग के पास साधन नहीं है, जिन लोग के पास सुविधा नहीं है, उन लोग के पास हम लोग उस जरिए के साथ पहुंच सके। यही आप लोग सोचिए, क्योंकि मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोग अभी जिस उम्र के पड़ाव में हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हम लोग का उम्र क्या है। अभी हमारे सबके पास जो भी मास्टर क्लास हम लोग ऑर्गेनाइजर्स हैं, ऑर्गेनाइजर टीम में हम जो भी हैं, हमारे पास सदस्य भी, उन लोग के भी एज भी तो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है। हम लोग सिर्फ आपसे कुछ ईयर्स बड़े हैं, तो एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा गेन हुआ है, बस इसके सिवाय और कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमारे आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हारिए मत, थकिए मत। आप लोग अगर थक जाते हैं अभी इतनी यंग एज में, तो बहुत मुश्किल वाली सिचुएशन पैदा हो जाती है, जिसके कारण सिर्फ आप हैं। अगर आप झेल सकते हैं तो आप कर भी तो सकते हैं। कुछ करके दिखाना तो एक दिन की बात नहीं है, उसमें टाइम लगता है, वक्त लगता है, क्योंकि जो भी कुछ अच्छा बनता है ना, अच्छे बनने के लिए उस वक्त चाहिए होता है। तो आप यही सोचिए कि आपको अभी जो वक्त मिल रहा है, अभी जो कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, वो सिर्फ आपकी उस वक्त की परीक्षाएं हैं और कुछ नहीं है। आप देखिए, अगर कोई एक जंगल में खो जाता है, अगर कोई जंगल में खो जाता है, तो जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल इंसान है वो क्या करता है, वो पास के जितने भी टॉल ट्री है उसमें से ढूंढता है जिसके ऊपर वो चढ़ सकता है, तो उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और उस पेड़ के ऊपर चढ़ के पूरा जंगल का छानमान कर लेता है, जिससे उसको देख सकते हैं कि वहां से रास्ता गुजर है, और शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ वहां से वो निकाल लेता है उस पेड़ के ऊपर से चढ़ के। फिर वो उतर के उस रास्ते पर चला जाकर जंगल से निकल आता है। तो यही स्टोरी हमारे सबके साथ एक ही चीज है, जो आप कैसे सिचुएशंस के ऊपर जाए। देखिए, जंगल में रास्ते में जो भटक रहा था वो था सिचुएशन। अब जब वो ट्री टॉप में चला गया, वो हुआ अबव द सिचुएशन। सो व्हेन यू गो अबव द सिचुएशन, एवरीथिंग बिकम्स क्रिस्टल क्लियर एंड इजी टू टेक ओवर, राइट। तो आप लोग के पास अभी बहुत ऊर्जा है, बहुत कोशिशें बाकी है। अगर एक बार नाकाम हुए तो दूसरी बार कीजिए, दूसरी बार नाकाम हुए तीसरी बार कीजिए। पर आपको ये लगता है क्या ऐसा संभव है कि हम लोग करते ही जाए और नाकाम होते ही जाए। तो आप लाइफ इज अ बंच ऑफ पॉसिबिलिटीज, राइट। आप अगर कोई चीज करने में नाकाम भी हुए, एक्सपीरियंस मिलता है, जो सीख मिलती है। अगर सीधी बात में कहूँ, जो सीख मिलती है, इससे मुझे ये एक्सपीरियंस गैदर हुआ, ये सीख मिलती है, तो वो बहुत बड़ी है। आफ्टर ऑल आपको जिंदगी में पैसा नहीं अचीव करना, जिसमें जो हो, जिसको भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उसको भी लगे जा अरे ये लड़का भी तो ऐसे ही हालत में था, ये लड़की ऐसी हालत में थी, देखो आज कहाँ चला गया, तो हम भी कर सकते हैं। तो बी इंस्पिरेशन ऑफ दैट फ्यूचर, राइट। बहुत कुछ कहने को है, पर हमारे जो सिचुएशन है अभी, हम जिस जगह पर हैं अभी, जिस मोड़ पर खड़े हैं, उस मोड़ से अगर देखें तो जिंदगी अभी बहुत बाकी है। 75% अभी आपको बाकी है। तो अभी 25% में ही आप थके हारे नहीं बन सकते, ये उचित नहीं है आपके लिए। आप 11th में हो या 12th में हो, आप डिफेंस में जा रहे हो और कोई सर्विस में जा रहे हो, आप जिसने भी अब ड्रीम है, आपको जो लगता है मैं ये बन सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, ये मेरा सपना है, आप सपने के पीछे भागिए। आप सिटीजन ऐसे ही बन जाएंगे, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऐसे ही बन जाएंगे। अब रही बात प्रॉब्लम्स की और रही बात सॉल्यूशंस की, देखिए मुझे लगता है पर्सनली कि हर एक प्रॉब्लम, हर एक समस्या की n+1 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते, n+1 नंबर। वो n क्या है, जितनी बार आपने कोशिश की और नाकाम रहे, और वो
वन सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन को आपने अभी तक नहीं ढूंढ पाए, पर वही सॉल्यूशन है, पर वो है, एग्जिस्ट करता है, पर आपने ढूंढ ढूंढ नहीं निकाल सके, राइट। ये तो स्टोरी में भी है, जो एडिसन को बल्ब आविष्कार करने के लिए 500 बार बल्ब जला, लगभग वो जल गया, और आज देखिए बल्ब कहाँ से कहाँ है और एडिसन का नाम कहाँ से कहाँ है। सो हिस्ट्री हैज प्रूवन that those persons, those human individuals who dare do something beyond their capacity, they are engraved in the history, right? तो ये मोटिवेशन की बात नहीं है, ये इंस्पिरेशन की बात नहीं है। देखिए इंस्पिरेशन तो बाहर से नहीं आ सकती, ये अपने आप से आती है। आप कलाम साहब को देखिए, वो साइकिल चलाकर खबर की पेपर न्यूज़पेपर बेचकर कुछ भी करके अपना खर्चा चलाते, स्कॉलरशिप से पढ़ाई की, कुछ भी अपना धन जुटाए। इतने प्रॉब्लम्स थी से अब हमारे देश फर्स्ट मिसाइल्स के पास, आप लोगों ने देखा है शायद फिल्म में वगैरह वगैरह, कैसे उन्होंने एक चर्च में फर्स्ट स्पेस को स्थापित किया। इतने डिफिकल्टीज, इतने प्रॉब्लम्स के बाद आज हम इतने बड़े सुपर पावर हैं इंडिया। तो यही इन की जिंदगी से हमें यही सीखना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ जिंदगी जी सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि ये सब स्टोरी वाली बातें हैं, ये सब तो नहीं हो सकती, पर ये भी तो सोचना चाहिए आपको, कलाम भी एक दिन 11th में पढ़ते थे, एडिसन भी एक दिन 17 साल के थे, तब वो उस एज में क्या सोचते थे, तब वो कैसे कैसे आगे बढ़े। तो इसी तरह ये चल सकता है, इसी तरह ये आगे बढ़ सकता है। जीवन जीने का हर एक तरीका अलग, आप कॉपी मत कीजिए, किसी का भी कॉपी मत कीजिए। कौन क्या कर रहा है, कौन किस तरफ जा रहा है, आप वो मत देखिए, आप अपने सपनों के पीछे भागिए। जो भी इंसान सपनों के पीछे भागता है वही देश का बहुत बड़ा कारीगर बनता है। ये आप मिला कर दे, अपने इतिहास से, अपने भविष्य से, अपने वर्तमान से। और आफ्टर ऑल जो भी कुछ कहना है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नहीं है, पर दिस ब्यूटीफुल इवनिंग आई गॉट विथ यू, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टास्क आई थिंक, जो मुझे मिला है आप लोगों से शेयर करने के लिए। जो मेरी एक्सपीरियंस कहती है आज तक की 22, 23, 24 साल की जो एक्सपीरियंस मुझे कहती है, जो मैं यही सोचता हूँ जी कि क्या है, आपके पास कोई साधन नहीं हो, आपके पास कुछ भी नहीं हो, पर आपके पास एक ही चीज होनी चाहिए, वो है डिटर्मिनेशन। अगर आपको लगता है, आप लोग ठान लिया है कि मैं ये करूंगा ही करूंगा, मुझे करना पड़ेगा, तब आपको कोई नहीं रोक सकता। आप देखिए, जाइए, अभी तो गूगल की कल्याण से सब कुछ मिल सकता है, जितने भी साइंटिस्ट हैं उसको आप देखिए, ढूंढिए, सबको मिल सकता है, आपको सब कुछ मिल सकता है। मादम कुरी 3 दिन में एक ब्रेड खाकर अपना रिसर्च काम चलाती थी, जब उनके पास कोई पैसा नहीं था। पूरी दोनों, तो दोनों में 3 दिन में एक ब्रेड खाकर अपना रिसर्च पर चला, कहाँ पड़ा था। तो इतना आश्चर्यजनक है। आप देखिए, ऐसा एक जीवन जीने का कोशिश कीजिए, अभी इस उम्र के पड़ाव से सोचिए, क्योंकि अभी आप लोग में ये समय है, एक बन कोई बर्तन बनता है, तो वो जब कच्चा रहता है तभी उसको खाया जा सकता है। जब वो पक जाता, जब वो आग में जलाया जाता, धूप में सुखाया जाता है, तो सूखने के बाद उसमें काम काज नहीं कर सकते। जब वो कच्चा है तब अब उसमें कोई कारुकाज कर सकते हैं, नक्शा कर सकते हैं। तो अभी हम लोग उस एज में हैं, इस समय से, पर हमारे ऊपर वो काम काज किया जा सकता है, वो कारुकाज किया जा सकता है, वो काम काज किया जा सकता है। तो आपको यही सोचना है, यही दिमाग में लेना है या दिल में लेना है। और जो अच्छी तरह से कहूँ, जो अभी अभी हम लोग को जो कुछ भी करना है, हम डॉक्टर बने, हम इंजीनियर बने, हम पोएट बने, कुछ भी, लिटरेचर हो, सब्जेक्ट हो, साइंस हो, एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। और आपको सिर्फ अपनी गहराई बढ़ानी है। देखिए, ऊंची इमारतों को तो आप देखते ही हैं, तो जो जितनी ऊंची भी इमारत हो, उसकी बेस कितनी अच्छी है उसके ऊपर सब डिपेंड करती है ना।
तो जिसके बेस जितनी अच्छी है, जितनी स्ट्रांग है। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, सॉरी फॉर दिस Yes, yes, yes. interaction. This is very much tower problem. That is the most issue, I think. Now, am I audible? Hello. Yes. Yes, Oh, I okay. got you So are let me audible. continue. Yeah. Thank you, thank you, thank you. ओके, लेट मी कंटिन्यू। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए हमारे इतने एक्सपर्ट्स, मुझे इतना अच्छा लगा ये मास्टर क्लास ज्वाइन करके। देखिए आप लोग के जो सीनियर है वो भी आप लोग की सोच रहे हैं ना, है ना, ये भी कहीं से कोई एक्सपीरियंस गैदर करके आए हैं। अभी मेरे पिछले स्पीकर को जब वो भी पॉइंट्स को, जो करेज होना चाहिए, इनोवेटिवनेस होना चाहिए, ये आपको डिस्क्राइब किया उन्होंने। तो आपको हर एक चीज जहन में लेना है, जो मुझे अभी तो इस हालत में, अभी तो कल ही सुबह तो मैं ये सब कुछ अचीव नहीं कर सकता, पर जो एक्सपीरियंस आप लोग ने मास्टर क्लास से गैदर की है, या कुछ भी असिस्टेंस हम लोग कर पाए हैं आपके लिए, तो ही आप लोग के लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो सकता है, ये मैं सोचता हूँ कि अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी अच्छा लगे मतलब आपको जो कुछ भी अच्छा लगे, जो ही सब्जेक्ट अच्छा लगे, जो ही टॉपिक अच्छा लगे, आप उसके उसके लिए अलग से टाइम निकालने की कोशिश कीजिए। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं, अगर आपको लिटरेचर अच्छा लगता है, तो उसको छोड़िए मत कि मैं साइंस पढ़ रहा हूँ, लिटरेचर क्यों पढूं। वो आप छोड़िए, क्योंकि वही आपको और साइंस पढ़ने की समझ को विकसित करता है। आपको लगेगा, पर आप लिटरेचर जितना पढ़ेंगे, जितना आप जानेंगे, आपकी गहराई जितनी बढ़ेगी, उतनी आपको सुविधा होगी अपने सब्जेक्ट टॉपिक के ऊपर अपनी पकड़ और स्ट्रांग बनाने की। समस्याएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी, दिन तो ढलते ही रहेंगे, जैसे बादल आते हैं फिर साथ होती है, फिर कभी धूप उठता है। पर सबके बावजूद आपको यही सोचना है, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, जिस सिचुएशन में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी प्रैक्टिकल सिचुएशन, आपके पास किताब नहीं हो सकती, आपके पास और कोई दूसरे साधन नहीं हो सकते, आपके पास अच्छा मोबाइल फोन नहीं हो सकता, या फिर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं हो सकता, डेस्कटॉप नहीं हो सकता, कुछ भी, जो कुछ नहीं हो सकता है आपके पास, जो कुछ नहीं है, आप उसको मत सोचिए। जो कुछ है आपके पास, मेरे पास ये चीज है अभी, उस चीज के बारे में आप सोचिए और उस पे फोकस कीजिए, उसको ही आपका साधन बनाइए, जो कुछ आपके पास है। देखिए अगर आप सोचेंगे, हैरान रहेंगे जी, कितने कितने मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन स्कूल छूट हो जाते हैं। इस लॉकडाउन के बाद भी कितने कितने छोटे छोटे बच्चे स्कूल से निकल गए, कितनों की कम उम्र में शादी कर दी गई, कितनी लड़कियां, इतने पुलिस केसेस हुए, आप लोगों ने शायद सुना होगा। तो आप लोग ये देख सकते हैं जी, इन लोगों के बीच भी आप तो कितने लकी है, हम कितने लकी है जो हम लोग अपनी स्टडी, अपनी इच्छाएं ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं। हमारे पेरेंट्स वहां पर दबाव नहीं डाल रहे हैं, या फिर हमें और कुछ तरह बाधा नहीं डाल रहे, या फिर दूसरों को और कोई बाधा नहीं डाल रहे, अभी मत करो, ये काम करो, वो करो। तो अभी आप लोग जब पढ़ रहे हैं, कुछ स्टडी के थ्रू जा रहे हैं, अपने डिसीजंस ले रहे हैं आस्ते आस्ते, मुझे ये करना चाहिए, तब आपको लगता है जो जी जान से आप करिए। और कुछ भी अगर फेलियर हो, कोई समस्याएं हो, आप नाकाम रहे, तो उससे कुछ आता जाता नहीं। आप बस दिल में ये ठान लीजिए, मुंह में हंसी रखिए, बिकॉज स्माइल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल मेडिसिन इन माई एक्सपीरियंस। हंसी से बढ़कर और कोई मेडिसिन नहीं हो सकती। आप दिल खुश रखिए और दिल खोल कर पढ़ाई कीजिए। जो कुछ भी सब्जेक्ट, जो कुछ भी टॉपिक हो, आप दिल खोल के पढ़िए। सिर्फ डर के मारे मत पढ़िए जो मुझे एग्जाम में आ सकता है, ये मुझे करना है, वो मुझे एंट्रेंस में नहीं आता तो वो नहीं पढ़ूंगा। आप जो कुछ भी करेंगे, सब कुछ आपको भविष्य में काम में आएगा। ये आप देखिए, बातें तो होती रहेंगी। मेरे जो थे उन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें भी कही हैं आपको। मेरे पास तो उतने बातें कहने को नहीं है, पर जो भी कुछ बताया मैंने अपने हिसाब से, वो शायद आपको काम आ सकता है, मैं वही कहूंगा। क्योंकि ये सब मोटिवेशन की बातें नहीं है, या फिर इंस्पिरेशन नहीं है, या फिर कोई आइडियलिस्टिक अप्रोच भी नहीं। जिंदगी जीने का तरीका है। अब ये तरीका मेरे मुझे सूट करता है, इसका मतलब नहीं ये तरीका ही आपको भी फॉलो करना है। पर आप ऊपर से कोई एक्सट्रैक्ट तो जरूर निकाल सकते हैं, मैं ये कहूंगा। बैकग्राउंड से है मुझे तो पता नहीं,
साइंस बैकग्राउंड से हो सकता है, लिटरेचर से हो सकता है, या फिर कुछ भी। तो ये डिपेंड नहीं करता आप क्या करेंगे या नहीं करेंगे, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। हर जगह अपॉर्चुनिटीज है, हर जगह आपको मौका मिलेगा। आप सिर्फ अपने आप को एक बार तैयार तो करके देखिए। और अगर आपको गॉड पे भरोसा है तो बहुत ही बढ़िया, और अगर गॉड पे भरोसा नहीं है तो गॉड के बीच और एक ओ डाल दीजिए। गुड पे तो भरोसा होगा ही जरूर सबको, है कि नहीं? सबको भरोसा होगा। तो गॉड और गुड मेरे हिसाब से एक ही चीज है। आप जो कुछ भी अच्छा सोचे, जो कुछ भी अच्छा करे, जो कुछ भी अच्छा सपना देखे, वो सब भगवान और या फिर वो सर्वशक्तिमान जो भी कोई हो उसका ही प्रतीक है, मैं ये सोचता हूँ। अच्छे से रहिए, अच्छे करिए, अच्छे सोचिए, और सब कुछ अच्छा अच्छा। हंसते रहिए, खिलते रहिए। अभी बढ़ने का वक्त है, पढ़ने का वक्त है। अभी एकदम डरिए मत, एकदम घबराइए मत, क्योंकि अभी अगर आप थक जाएंगे, हार जाएंगे, घबरा जाएंगे, तब बाकी जिंदगी कैसे गुजारेंगे? क्योंकि अभी जैसे चींटियां क्या करती हैं, दाना लेकर एक जगह स्टोर करती है ना, किसके लिए? जब विंटर सेशन आता है तब, विंटर सीजन के लिए। जब बहुत ठंडी पड़ेगी तब उन लोग बाहर नहीं निकलते, और पर पूरी साल भर वो लोग खाना स्टोर करते रहते हैं। तो अभी वो खाना स्टोर करने का वक्त है हमारा, जो हम क्या क्या एक्सपीरियंस गैदर करें, हम कहाँ कहाँ से जाएं, हम क्या क्या स्टोर करें अपने हिसाब से, अपने अचीव करें क्या क्या। और वो अचीवमेंट सिर्फ प्राइज या और कुछ वगैरह वगैरह से नहीं होता। अचीवमेंट मतलब और कुछ भी समझाता है, जो आप दूसरों के कितने करीब रहे, साथ कितने घुल मिल गए, कितना लाइफ को एंजॉय किया, इन दूसरों के साथ मिलकर सही में एंजॉय किया। और वही हम लोग को अपना विंटर सेशन में काम आएंगे। जब हम लोग के विंटर सेशन आएंगे, समझ लेंगे जब मैं क्या किसकी बात कर रहा हूँ, यू विल अंडरस्टैंड। तब ये काम आएंगे जब मैंने तब तब क्या क्या डिसीजन लिए थे, आज उसका फल मुझे मिल रहा है। तो आप डरिए मत, थकिए मत, हारिए मत, यही कहूंगा मैं। शायद मैंने बहुत ज्यादा वक्त ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप बहुत अच्छे से रहिए, बहुत मन रहिए। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉन्टैक्ट, ओके, थ्रू द मास्टर क्लास टीम। शायद आपको ये कैसा लगा मुझे पता नहीं, इसका रिस्पॉन्स भी कैसा आएगा मुझे पता नहीं, मुझे कुछ तैयारी नहीं थी। पर जो भी हो सके मैंने बताया, आप मेरे हिसाब से शायद आपको अच्छा लगा होगा। बहुत शुभकामनाएं हमारी सबकी ओर से। और मास्टर क्लास टीम को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है दूसरों के लिए सोचकर, ये जानकर भी, ये सोचकर भी, और इसका मेंबर होना तो बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत बहुत खुशी मिलती है। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। लोग बहुत खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहकर पढ़िए। यही को मैं बार बार फोकस करना चाहता हूँ। और ये याद रखिए, जो भागता है वो जीतता नहीं, और जो जीतता है वो भागता कभी नहीं है कि नहीं? आप बहुत खुश रहिए, बहुत खुश रहिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉन्टैक्ट थ्रू द मास्टर क्लास। ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, थैंक यू। Yeah, thank you, Zoikat, for your valuable speech. And now, here is the Suchismita Banerjee. He delivers some speech. So, Suchismita, hello, are you there? হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, হ্যালো। Yeah. Now, ওকে। screen is yours. Hello, good evening to all. I am Shuchismita Banerjee, a PI member of our masterclass platform. I have completed my BSc in Zoology from Bardwan Raj College, and now I prepare for MSc entrance examination. I would like to thanks to all the members and experts for giving me this golden opportunity in this platform, and also thanks to all the students for their valuable supports. তো এর বেশি মানে আজকে আমি খুব হ্যাপি আর কি, যে এরকম সবাই আশা করি বাংলা এখানে বোঝে। আমার হিন্দিতে প্রচন্ড প্রবলেম, সেটা প্রথম থেকে আর কি বলে এসছি। তো একটা পড়াশোনার পাশাপাশি আবৃত্তি, এটা আর কি ভালো লাগে বা করিও ছোটখাটো। আজকে আমি ফার্স্টের দিকে প্রথম সেশনটাতে ছিলাম, পিআই সেশনটাতে, তারপর আর ইনভলভ থাকা হয়নি। তো খুব মানে একটা অন্যরকম এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে, ভীষণ ভালো লেগেছে এটা।
এটা একটা খুব ভালো উদ্যোগ আর কি, যে মাস্টার ক্লাসের পক্ষ থেকে যেটা নেওয়া হয়েছে। আমার মনে হয় অনেকে হেল্প হয়েছে, অনেকে উপকার পেয়েছে এটাতে, পাবেও। তো বলছি, সাউন্ড কি ঠিকঠাক আছে? আমি জানি না, নেটের খুব প্রবলেম, তো ওর জন্য সাউন্ড কি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তো আমি একটা ছোট এমনি আবৃত্তি বলার চেষ্টা করছি, জানি না কত হবে, সেরকম এক্সপার্ট না, চেষ্টা করছি বলতে। কবি জয় গোস্বামীর মেঘ বলতে আপত্তি কি? মেঘ বলতে আপত্তি কি? বেশ, বলতে পারি। ছাদের ওপর মেঘ দাঁড়াতো ফুল পিসিমার বাড়ি। গ্রীষ্ম ছুটি চলছে তখন, তখন মানে কবে? আমার যদি 14 মেঘের 16-17 হবে। ছাদের থেকে হাত ছানি দিত, ক্যারাম খেলবি? আয়। সারা দুপুর কাহা তোকার ক্যারাম খেলা যায়। সেজন্যই জোত চুরি হয়। হ্যাঁ, জোত চুরি হতো। আমার যদি 14 মেঘের 15-16 মতো। ঘুরিয়ে দিতে জানতো খেলা শক্ত ঘুঁটি পেলে। জায়গা মতো সরিয়ে নিত আঙুল দিয়ে ঠেলে। শুধু আঙুল, বোর্ডের ওপর লম্বা ফ্রকের ঝুল ঝপাং ফেলে ঘটিয়ে দিত ঘুটির দিক ফুল। এখানে না, না ওখানে, হ্যাঁ হ্যাঁ এইটা না ওইটা। ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিনিয়ে নিল ঘুটির বাক্সটা। ঘুটিরও সেই প্রথম মরণ। প্রথম মরা মানে বুঝবে শুধু তারাই যারা ক্যারাম খেলা জানে। চলেও গেল কদিন পরে, মেঘ যেমন চায়। কাঠ ফাটা রোদ রইল পড়ে মেঘের জায়গায়। খেলা শেখাও, খেলা শেখাও, হা বিদ্বেষ কাক। কলসিতে ঠোঁট ডুবিয়েছিল, জল তো পুরি খাক। খাঁ খাওয়া সেই কলসি আবার পরের বছর জলে। ধরলো কেমন তোমায়? থামো, ওসব কি কেউ বলে? আত্মীয় হয়, আত্মীয় হয়, আত্মীয় না ছাই। স্পষ্ট করে বলো এবার, সব জানতে চাই। 2-3 ক্লাসের বয়স বেশি। গ্রীষ্ম ছুটি হলে ঘুরেও গেছে 2-3 বছর, এই জানে সকলে। আজকে দগ্ধ গ্রীষ্ম আমার, তোমায় বলতে পারি। মেঘ দেখতাম ছাদের ঘরে, ফুল পিসিমার বাড়ি। কমপ্লিট হলো, কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না কতজন, অনেকে কমেন্ট করেছে দেখলাম যে বাংলা বুঝতে পারছে না, প্রবলেম হচ্ছে। তো সরি, আমি এটা আমি চুজ করেছিলাম আজকে বলবো, বলার জন্য আর কি। জানি না কিরকম লাগলো বা It's okay, सुचिस्मिता, नो प्रॉब्लम, बिकॉज वो लोग हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल है, बट कोई नहीं, हम लोग अप्रिशिएट करते हैं तुमको इतना सुंदर पोएम इस बोलने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, হ্যালো। হ্যালো। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, তো এটা ছিল তো অনেক থ্যাংক ইউ আর কি সবাইকে যে এরকম একটা সুযোগ দেওয়ার জন্য। আর বাকিদেরকে সরি, কারণ আমি হিন্দিতে প্রচন্ডই উইক আর কি, মানে একদমই করতে পারবো না আর কি বলতে, যার জন্য বাংলা ইংলিশ করে বলার চেষ্টা করলাম। থ্যাংক ইউ সবাইকে। নো প্রবলেম। So I would like to tell about your experience from our students. So Divya Singh, Aparna Gupta and Nancy Sharma, can you share your experience? You can mute yourself and speak. Divya? Hello? Okay. So Keshav sir, please, you can share your experience with us.
Keshav sir, are you there? हेलो। Yeah, sir. हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म भी किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस ये से जुड़कर, ठीक है। और यहाँ के जितने भी एक्सपर्ट्स और कोर टीम मेंबर्स और पीआई के मेंबर्स थे, उनका भी बहुत अच्छा ये रहा मेरा, ठीक है। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनके साथ जुड़ करके इस एक प्लेटफॉर्म में, कहीं कि काफ़ी सारे फील्ड के एक्सपर्ट्स इस पर में आए। कुछ चीज़ें मुझे भी बहुत सारी सीखने को मिली, बहुत सारा समझ आया, ठीक है। और मैं बहुत अच्छे से मेरा हिंदी चूंकि थोड़ा थोड़ा अच्छा नहीं है, मैं समझता हूँ, तो फिर भी मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करी अपने तरीके से। बाकी जो कुछ बाकी रह गया होगा वो कभी ना कभी आने वाले दौर में हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे, जरूर करेंगे, ठीक है। और ऐसा कुछ भी चीज छूटा नहीं है, सभी चीजें आप पर निर्भर करती हैं। आप ही अपने आप को खुद से उस काबिल बनाइए, मोटिवेट करिए। और बाकी इस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। कुंतल, देवश्रिता, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म को लाने के लिए। थैंक्स अ लॉट। Thank you, sir. So now I would like to Debasrita, if she can deliver a small speech to and share her experience with us. Debasrita, hello, hello, are you there, Debasrita? So Nancy Sharma, are you replied? Can you unmute yourself? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, please. Yes, sir. It has been an amazing journey with masterclass. मैंने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया था इसमें एंड नाउ आई कैन से कि हाँ ये बहुत प्रोडक्टिव था मेरे लिए, जो भी मैंने टाइम दिया। नाउ इट इज़ टोटली क्लियर टू मी कि मुझे आगे जाके क्या परस्यू करना है। Being an introvert, it was tough for me to interact with a lot of people, but PI members and mentors ने काफ़ी easy बनाया हमारे लिए. So thank you so much for that, and especially Debashrita ma'am. She helped us in the best possible manner. So overall, it was an amazing experience to me. Thank you, sir. Thank you, Nancy. So Divya Singh says, first of all, thank you so much for all the mentors and members of this group. It was so grateful for all of you to help, support and guide us for our career, and all of you are too much amazing, and thank you so much. So thank you, Divya, for your kind words. Now I just share some my speech. So first of all, as you already know, myself Kuntal, one of the founder member of Masterclass, and I thanks to all of the PI members, expert and the students to be part of our journey. And initially we just planning to guide to our teenager to solve their problem, because we have the same problems when we at the early stage. So to guide our teenager, it's not an easy task, as already you know. So the kind of efforts PI members and expert and also the students are make, it's just unimaginable. So I would like to thanks all of you. Now, as notified earlier from our course that by Debasrita ma'am, that we have more than 150 plus students who ever submitted the response form, and 100 plus member and 75 plus expert from all over the world submitted the response. So this is quite a large number, right? So now we have more than 100 plus students who ever completed the personal interview test, and the 70 plus students
completed the interest test that all of you completed, that is RIASEC test, and 19 plus students who ever completed Big 5 test. And of course 30 plus students are there, but we are unable to have one more day, so we are sorry to all whoever want to take but not able. Now from our seminar we have 150 plus response submitted from our student, and it is quite मतलब shocking है, जो रेस्पॉन्स सबमिट किया है वो 98.5% स्टूडेंट्स जो रेस्पॉन्स सबमिट किया है वो हेल्पफुल, मतलब सेमिनार सेशन बहुत ही हेल्पफुल था उन लोगों के लिए। एंड जो इंफॉर्मेशन शेयर किया है हम लोगों का जो एक्सपर्ट है वो 85% इंफॉर्मेशन उन लोगों के लिए अननोन था। तो वी थिंक दैट दिस इज क्वाइट, मतलब हम लोग जो सोचे थे वो अचीव हुआ है, जो मतलब बहुत अचीव नहीं हुआ है तब भी सही है, बट जो स्टूडेंट भी कुछ सीखा है तो दैट इज ए satisfying things for us, and we would just thankful to Debasrita for her effort, and we would thankful to Chitradeep Saha for hosting from day one and for recording our all the videos that you just enjoy in YouTube. So because of him, so and we would like to thanks Amrita Bhattacharya and Papia for co-hosting along with Chitradeep Saha and all the experts. So thank you. And yeah, Soikot Banerjee says this was a great step for all of us. Thank you very much everyone. So thank you Soikot. And Aparna Gupta, many thank you to sir and madam. I have learned so much things, sir. I have enjoyed all the sessions because you all have given your previous time in given guidance to all, and I am appreciating your effort once again. Thank you so much ma'am and sir. So thank you Aparna. So just for information that our जो तुम लोग टेस्ट सबमिट किए थे वो 15 नवंबर के अंदर उसका रिजल्ट, सर्टिफिकेट वो सब भाया ईमेल डिलीवर हो जाएगा, और जो प्राइज और स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होगा उसको इंडिविजुअली हम लोग कांटेक्ट कर लेंगे, और ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए सब एफबी पेज जो है मास्टर क्लास का उसमें अपडेट किया जाएगा, तो उसको फॉलो कीजिए। एंड आपको सर्टिफिकेट और रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप 15 नवंबर के बाद आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो है मतलब यूपीएससी का जो छूट गया है उसके लिए हम लोग ईमेल कर देंगे 7 डेज बिफोर, हम लोग सबको ईमेल कर देंगे, जस्ट ज्वाइन कर लेना उस मीटिंग आईडी से। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। नाउ this is sad, but we also miss all of you. So thank you, and you can leave for today.